सह गण श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ते दार ओपन ठेवायचं की राहू दे? So we are now continuing from where we left yesterday. So we are in the chapter number second, discussing the contents of the Gita summarized. So before going ahead, I also want to bring to your notice one important aspect, which uh, which will be giving more clarity to us for this entire chapter. So if we see the entire chapter of Bhagavad Gita, chapter second, there are actually four main aspects we can say. Though chapter may be divided in different way in different books, that's all right. That you can see details. They are the details. But what I'm trying to bring to your notice here is specifically uh, there are some aspects of Sankhya Yoga in this chapter. There are some aspects of Karma Yoga in this chapter, and some aspect of Buddhi Yoga. So later, Srila Prabhupada, in one of the purports, I think so 38 or 39, he establishes Buddhi Yoga as Bhakti Yoga. This is a very unique contribution of Srila Prabhupada, brings that point that Buddhi Yoga is actually Bhakti Yoga. So basically, text number 11 till 30, it talks about Sankhya Yoga. है ना? So Sankhya Yoga, and then if you see text number 11 to 15, this five shlokas, they talk about we are souls and no one dies. ये theme है उसमें. Text number 16 to 22, what we discussed last time, is soul is different from body. They are not same. They are different from each other. Then also we concluded with this thing, this shloka, this 25, correct? 25 पे रुके थे हम लोग, है ना? So 23 to 25, it talks about characteristics of soul. Soul के गुणधर्म क्या है, आत्मा के गुणधर्म क्या है? And now 26 to 30, Krishna takes a very different angle. Krishna says, even if you believe soul dies, you shouldn't lament. Something like Bauddha Yoga, Bauddha philosophy, Buddhist philosophy, Krishna is talking about here. है. And then later, what we'll today begin, or we try to also try to cover the aspect of karma. That's from 31 to 38. So divisions I'll tell that time because otherwise you'll not remember now. So as of now, we are into which now? 26 to 30. Because last time we already did the summary of the previous section and then that current section. So we are not going to do that.
this time again. So now we are beginning from text number 26. So basically, as I said, from 26 till 30, Krishna is changing the line of thought. If you see, there is a series, a sequence which is going on till this point, like I told you already. Like 11 to 15, we are souls, no one dies. And then 16 22 is like soul and body are they different. And then 20 to 35, 25 is characteristics of the soul. And suddenly Krishna talks about Bauddhavad or Buddhist thought process. He's saying now atha. Atha is very important word. atha का मतलब क्या लिखा है प्रभुपाद ने? If however. मतलब हम वर्ड इफ कब यूज करते हैं? आपने कभी पहले सुना होगा अबाउट प्रमाण. अलग अलग प्रकार के प्रमाण होते हैं. एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण. सो कृष्णा क्या प्रमाण यूज कर रहे हैं यहाँ पे? अनुमान कर रहे हैं. इफ, अगर ऐसा होगा तो, है ना, इस तरह से यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं अभी. सो ही सिंग अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैनम सोचित अर्हसि. Last time I was telling you that in many of the shlokas, the last line is quite same. If you see from text number 26 onwards, 25 onwards, Nanu Sochintam Arhasi, है ना? Now he is saying here, Nainam Sochitam Arhasi. Text 26 में बोल रहे हैं. फिर 27 में बोलेंगे नत्वम सोचितम अर्हसि. 28 में बोलेंगे तत्र का परिदेवे देवेना. So he is kind of, similar thing यहाँ पे वो touch कर रहे हैं कृष्णा. So in this shloka, he is using the word Mahabaho to describe Arjun, which is very, very significant. महाबाहो क्यों बोल रहे हैं अर्जुन को अभी? ओ माइटी आर्म्ड, कृष्ण बोल रहे हैं. One is he is using the word atha, and then he is using the word manyase. मन्यसे मतलब, हाँ मतलब आप अगर ऐसे सोचते हो तो, है ना. कृष्णा का लैंग्वेज इज वेरी ट्रिकी. लेट्स रीड द ट्रांसलेशन. इफ however you think, नॉट कृष्ण से कि मैं सोच रहा ऐसा, इन केस यू थिंक मन्य से that the soul or the symptoms of life will always be born and die forever, you still have no reason to lament, O mighty armed. So purport, Prabhupada, so as Prabhupada, whenever gets opportunity, he always smashes Mayavad, Bauddhavad. Here also Prabhupada is doing the same thing. Let's read that. Can someone read that purport? There is always a class of philosophers, almost akin to the Buddhist, who do not believe in the separate existence of the soul beyond the body. When Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita, it appears that such philosophers existed, and they were known as the Lokyatikas and Vibhakshikas. Such philosophers maintain that life symptoms take place at a certain mature condition of material combination. The modern material scientists and materialist philosophers also think similarly. According to them, the body is a combination of physical elements, and at a certain age, the life at the certain stage, the life symptoms develop by interaction of the physical and chemical elements. The science of anthropology is based on the philosophy. Currently, many pseudo religions, now becoming fashionable in America, are also adhering to the philosophy, as are the nihilistic non devotional Buddhist sects. Even if Arjuna did not believe in the existence of the soul, as in the Vibhashika philosophy, there would still have been no cause for lamentation. No one laments the loss of certain bulk of chemicals and stops discharging his prescribed duties. Like we hear in device, है ना, और बॉडी कॉस्ट इज 110 रुपीज, है ना. तो बोले ठीक है भाई, तुम बोल रहे हो तुम सोल नहीं हो, योर बॉडी मेड विद केमिकल, स्टिल 110 रुपए की बॉडी के लिए कौन रहेगा? In short, Krishna is kind of bringing out that point here. Yes. On the other hand, in modern science and scientific warfare,
So many tons of chemicals are wasted for achieving victory over the enemy. According to the Vibhashika philosophy, the so-called soul or Atma vanishes along with the deterioration of body. So, in any case, whether Arjuna accepted with the conclusion that there is an atomic soul or he did not believe in the existence of the soul, he has no reason to lament. According to his theory, since there are so many living entities gathering out of matter every moment, and so many of them are being vanquished every moment, there is no need to grieve for such incidents. If there were if there were no rebirth for the soul, Arjuna had no reason to be afraid of being affected by sinful reaction due to his killing his cat father and teacher. But at the same time, Krishna sarcastically addressed Arjuna as Mahabahu, mighty arm, because he at least did not accept the theory of Shiks, which leaves aside the Vedic wisdom. As a Kshatriya, Arjun belonged to the Vedic culture and it behooved him to continue to follow his principles. So Arjun is an Aryan, and it's like a un-Aryan theory, है ना? ये जो है, he is Arya who is into Vedic life and Vedic culture. That's why he's called Arya, and he's Kshatriya also. So he's saying that why Krishna is sarcastically calling him as Mahabahu, because अरे भाई तुम महाबाहु हो लेकिन ये सब क्या फालतू बातें कर रहे हो. Krishna is telling him. Okay, let's go to now. See, Krishna is using now different ways and means. So after some time, once this section is over, we'll also discuss with you about how Krishna is using different philosophies to motivate Arjun in the different part of this chapter. कहाँ पे क्या क्या फिलोसफी कृष्णा ने यूज किया है, तो एक बार आपको उसका ओवरव्यू दे दूंगा मैं, ताकि फिर यू गेट क्लैरिटी कि कहाँ का क्या डिस्कस हो रहा है. नो अगेन कृष्णा इज इमीडिएटली ना बौद्धवाद, ठीक है बोल दिया. सी अनदर प्लेस कृष्णा टॉक्स अबाउट अ डिफरेंट फिलोसफी इन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पास टाइम. एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पास टाइम है भगवान श्री कृष्ण का जो है, उसमें कृष्ण टॉक्स अबाउट अ डिफरेंट फिलोसफी विच ही डजंट फॉलो हिमसेल्फ. कृष्ण टॉक्स अबाउट अ डिफरेंट फिलोसफी ड्यूरिंग गोवर्धन लीला. In Govardhan Leela, and now we'll just touch it because it's a big thing, big discussion, but I'll just touch it the point that. So कृष्ण बोलते हैं कि अरे भाई ये सब देवी देवताओं को देना क्या पॉइंट है, वाई वी शुड गिव टू देवी देवतास. तो वहां पे ही टॉक्स अबाउट अ फिलोसफी, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है बट ही टॉक्स अबाउट अ फिलोसफी. हाँ, ही टॉक्स अबाउट मीमांसा फिलोसफी, मीमांसा. अपने फादर को कन्विंस करने के लिए कि आप है ना इंद्र की पूजा मत करो. आई एम जस्ट गिविंग अ पॉइंट कि ये एग्जांपल क्यों दे रहा. वो बड़ा टॉपिक है. जस्ट मैं आपको बोल रहा हूँ कि कृष्णा कभी कभी क्या करते हैं. मेरा एग्जांपल ये था कि कृष्णा यूजेस डिफरेंट फिलोसफीज एट टाइम्स टू डिस्प्रूव सर्टेन पॉइंट्स. लाइक हियर इन भगवद गीता इज टॉकिंग अबाउट दिस बौद्ध फिलोसफी. वे तुरंत कृष्णा स्विच ओवर करेंगे कर्मवाद के ऊपर. नेक्स्ट होगा. अब क्या बोला, अब तक क्या बोला था कृष्ण ने कि भाई ऐसा सोल वोल है नहीं, ये पता नहीं, अगर नहीं है सपोज तो भी क्या टेंशन नहीं, आपको मार दो. अभी कृष्ण बोल रहे हैं यहाँ पे कि जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्माद अपि परिहार्य ऋते न त्वम शोचितुम अर्हसि. है ना. जातस्य ही, जातस्य मतलब क्या, जिसने जन्म लिया है. जात कर्म, बर्थ एक्टिविटीज. तो जातस्य जिसने बर्थ लिया है, ही ध्रुव मृत्यु. ध्रुव, ध्रुव शब्द क्यों यूज किया यहाँ पे, ये फैक्ट है. इट्स अ फैक्ट दैट जिसका जन्म हुआ है उसका क्या होता है, मृत्यु कंफर्म है. ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि उसका मृत्यु एक फिक्स है, इसमें नो सेकंड थॉट इन दैट. तस्माद अपरिहार्य, अपरिहार्य मतलब इसका अपरिहार नहीं कर सकते आप. मतलब हाँ, यू कैन अवॉइड इट, उसको अवॉइड नहीं कर सकते आप. सो वन हु हैज टेकन बर्थ इज श्योर टू डाई एंड आफ्टर डेथ वन इज श्योर टू टेक बर्थ अगेन. देयरफॉर इन द अनअवॉइडेबल डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटी, सो
अपरिहार्य किसको बोला है उन्होंने? अपरिहार्य ये शब्द कृष्ण ने यूज किया है, इज यूटिलाइज फॉर व्हाट? नहीं, नो, अपरिहार्य इज फॉर ड्यूटी। पढ़ो ना, ट्रांसलेशन में लिखा है ना, अनअवॉइडेबल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, ऑफ योर ड्यूटी, विच इज टू फाइट। हाँ, अदर क्षत्रिय फॉर इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज टू फाइट। सबके लिए नहीं बोल रहे। कॉन्टेक्चुअली कृष्ण इज टॉकिंग। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूटी बाय द वे? मैं टॉक अबाउट ड्यूटी, ड्यूटी मतलब क्या? ड्यूटी को क्या बोलते हैं संस्कृत में? है, धर्म कहाँ से आ गया? ड्यूटी, नहीं नहीं, नहीं रे, कर्मा एक्टिविटीज। व्हाट इज ड्यूटी? अरे भाई संस्कृत में क्या बोलते हैं? हाँ, कर्ता। हाँ, वेरी गुड। ड्यूटी का मतलब है कर्तव्य। थोड़ा सा संस्कृत ग्रामर को टच करेंगे अभी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, जितना मुझे लिटिल आता है उतना। तो एनीवेयर द वर्ड व्य कम्स, व्य, हाँ, सफिक्स और प्रीफिक्स होता है, जहां पे सफिक्स में व्य आता है, व्य, उसका मतलब है, उसको ऑप्शन नहीं होता है। वेरेवर द सफिक्स व्य कम्स, मुझे बोलो कहाँ का, जैसे कर्तव्य में सफिक्स आ रहा है, वैसे और कहाँ का व्य आता है? श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, एक श्लोक आता है इसमें। तो श्रोतव्य का मतलब क्या है? नहीं, सुनना ही चाहिए। कीर्तितव्यश्च, उनका कीर्ति का गुणगान करना ही चाहिए, उसमें ऑप्शन नहीं होता है। वैसे कर्तव्य मतलब वो ड्यूटी को करना ही चाहिए, है ना। कभी कभी हमको लगता है भक्त बनने के बाद ठीक है, ओके, किया नहीं किया चलता है। एक आध बार किसी को होता है ना, अरे ये मेरा छूट गया, वो रह गया, आज रोज मैं डिसाइड किया कि इतना करूंगा लेकिन उतना नहीं कर पाया, ठीक है कल कर लूंगा। पर क्या कोई व्यक्ति जो ड्यूटी के फॉर्म में उसको देखता है, कैन ही पोस्टपोन इट? नहीं। पता है देयर आर 4 प्लेटफॉर्म्स ऑफ, यू नो, वर्शिप। देयर इज समथिंग कॉल्ड फियर, देन नेक्स्ट इज फियर, ड्यूटी, डिजायर एंड लव। तो कम से कम हमें ड्यूटी तो के फॉर्म तो करना चाहिए, कम से कम। फियर में करेंगे तो ज्यादा समय टिकेगा नहीं, है ना। किसी का फियर है इसलिए मैं कर रहा हूँ, इसके लिए करेंगे कोई भी एक्टिविटी, स्पिरिचुअल एक्टिविटी खास करके, देन वो कुछ समय टिकेगा लेकिन बाद में फिर वो वैनिश हो जाएगा। ड्यूटी के रूप में करेंगे तो एटलीस्ट ठीक है भाई, मैंने वचन दिया है तो मुझे करना ही है। एंड देन डिजायर इज व्हाट? अरे, लेट मी, इफ दैट इज गोइंग टू प्लीज हिम, लेट मी डू दैट। एंड व्हाट इज लव? लव में क्या होता है कि भाई, नो क्वेश्चन ओनली कि भाई करना नहीं करना है ना, नथिंग, कुछ भी हो जाए मैं को तो करूंगा ही वो चीज। तो इस तरह से, तो ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको? ड्यूटी के लिए, ड्यूटी वाला जो वर्ड कर्तव्य, तो जहां पे भी आज से आगे आप देखेंगे व्यय वर्ड इज आया, जोड़ा है, तो रिमेंबर दैट दैट यू हैव टू डू ओनली, देयर इज नो ऑप्शन फॉर दैट, है ना। स्मर्तव्य, स्मरणान करना ही चाहिए, हाँ, वो इंपॉर्टेंट है इसलिए इस तरह से। तो ये काफी कोटेड श्लोक है गीता का, कि जातस्य ध्रुव मृत्युर, खास करके फर्स्ट हाफ इस श्लोक का काफी बार कोट होता है। ओके, सो हियर इज टॉकिंग अबाउट कर्मवाद। So basically in the purport, Prabhupada talks about practical application. He says applying this philosophy to Arjun's case, there is no need to fear the death of relatives because fighting was the proper duty of a Kshatriya. पहला कारण दे रहे, दूसरा कारण प्रभुपाद दे रहे यहाँ पे, नो नीड टू फियर फॉर सिंफुल रिएक्शन बिकॉज ही डिड नॉट डिजर्व टू ब्रेक द लॉ, ही वॉज सिंपली कैरिंग आउट द विल ऑफ द सुप्रीम। परपोर्ट को क्या बोलते हैं, रिफ्रेज किया है, हाँ।
बट परपोर्ट मिल जाएगा सब चीज, मैं परपोर्ट के बाहर नहीं बोल रहा हूँ कुछ। सो बेसिकली टॉक्स अबाउट कर्मवाद। इसमें कर्मवाद कैसे आ गया? हाउ कर्मवाद इज हियर? ओके, वन हैज टू डू हिज ड्यूटी। Also this verse helps us to dispel our lamentation, कि ठीक है जो जिसका जन्म हो तो मरने ही वाला है, जो मरा है तो जन्म लेने ही वाला है। वेयर इज द कॉज ऑफ लैमेंटेशन? किसके लैमेंट करे? क्या अभी मर भी गया, युद्ध करते करते वो मर गया है, और उसका तो जन्म तो होने ही वाला है वापस से, तो लॉस क्या हुआ? वही तो बोलने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि कर्मयोग में क्या बोलते हैं। कर्मयोग क्या होता है बाय द वे? व्हाट इज कर्म? एक्टिविटीज। कर्मयोग इज व्हाट? एक्टिविटीज इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो उसको कर्मवाद क्यों कहा गया है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे कृष्ण, जैसे मैंने दो रीजंस पढ़े, ये श्लोक के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दो पढ़े मैंने। एक पढ़ा मैंने कि व्हाई देयर इज नो नीड टू फियर फ्रॉम द डेथ ऑफ रिलेटिव्स, बिकॉज अर्जुन इज क्षत्रिय। क्षत्रिय होने का उसने चिंता नहीं करना चाहिए कि भाई मेरा रिलेटिव मर जाएंगे क्या होगा। क्षत्रिय उसका ड्यूटी है, वो ड्यूटी आ गया उसका। और दूसरा, उसको ये भी, उसको डरना नहीं चाहिए कि मुझे रिएक्शंस आएंगे, ये मैं किसको मारूंगा तो मुझे रिएक्शन मिलेगा उस चीज का। क्यों उसको डरना नहीं चाहिए? नो नो, बिकॉज ही इज डूइंग दैट अंडर द डायरेक्शन ऑफ कृष्णा। कृष्णा बार बार सब जगह पे उसको क्या कर रहे हैं, बार बार उसको बोल रहे भाई बुद्धियोग सोल के बारे में जानो, लेकिन फाइट करो। हर चैप्टर में कृष्ण वही चीज बोल रहे बार बार कि भाई तुम ये सब जानो, मेरा स्मरण करो लेकिन मारो, मेरा वंदन करो लेकिन मारो, जो भी करो लेकिन मारो। वो मारो को छोड़ नहीं रहे कृष्ण कहीं पे भी, है ना। तो इसीलिए, सो वन, तुम्हें परपोर्ट पढ़ेंगे, वन हैज टू टेक बर्थ अकॉर्डिंग टू वंस एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, एंड आफ्टर फिनिशिंग वन टर्म ऑफ एक्टिविटीज वन हैज टू डाई टू टेक बर्थ फॉर द नेक्स्ट। In this way, one is going through the one cycle of birth and death after another without liberation. This cycle of birth and death does not, however, support unnecessary murder, slaughter, and war. But at the same time, violence and war are inevitable factors in human society for keeping law and order. देखो मैं कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, प्रोपा जो बोल रहे हैं उसको पढ़ रहा हूँ। The battle of Kurukshetra, being the will of the supreme, was an inevitable event, and the fight for the right cause is a duty of a Kshatriya. देखो यहाँ पे आ गया, for the right cause. Because Kshatriya, that means he has to fight. Why should he be afraid of or aggrieved at the death of his relative since he was discharging of his proper duty? हाँ हाँ। डिपेंड्स कोण सांगताय? स्वर्ग। तो दैट्स डिफरेंट, टेररिस्ट का अलग है पूरा। टेररिस्ट में क्या हो रहा है कि उसमें दे आर मिस रिप्रेजेंटिंग द फिलोसफी, है ना। और थी इसमें देखो प्रॉपर लिखते हैं ना क्लियरली। हम्म। या नहीं, वही तो बोल रहा, कौन बोल रहा है इंपॉर्टेंट है ना। हु इज टॉकिंग, हु इज कोटिंग व्हाट, और ही इज मिस कोटिंग ऑल्सो, और ही इज यूटिलाइजिंग फॉर हिज ओन पर्पस। हाँ, स्टूडेंट विल गेट बेनिफिट फॉर फॉलोइंग। यस, फॉलो तो किया उसने। सी प्रिंसिपल देखो आप, प्रिंसिपल फॉलो करने वाला है। अभी वो गलत चीज को फॉलो किया, उसका उसका उतना बुद्धि नहीं है, उसका कैपेसिटी नहीं, वो अलग बात। मुझे बोलो कि सपोज, मतलब गुरु डिसाइपल में हम बात करेंगे, है ना। भी कोई गुरु गुरु सपोज ऑफ हो गया, मैं ओपनली डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर उसने अपने कुछ शिष्यों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए ऑफ होने से पहले या फिर ऑफ होने के वक्त, तो क्या वो शिष्य को बेनिफिट मिलेगा फॉलो करने का या नहीं?
गुरु राइचियस। हाँ, एक एग्जांपल दे तो भागवतम मतलब। शुक्राचार्य, बली महाराज, काय झालं? हाँ, दे नॉट बेनिफिट नो, फॉर श्योर। कैसे बेनिफिट कैसे मिलेगा? मतलब मैं एक प्रिंसिपल बोला पहले आपको, थोड़े पहले जो बोला था, मतलब व्हेन यू फॉलो समथिंग विच इज टोल्ड टू यू बाय पर्सन इन ऑथोराइज पोजीशन, वो व्यक्ति सही है गलत है अलग बात है, बट आपने प्रिंसिपल, जब उस प्रिंसिपल देखेंगे उसको, तो फॉलो किया उसके लिए आपको, यू आर सेफ इन दैट वे, बिकॉज आपने जस्ट फॉलो किया। शायद आप अज्ञान में हैं, इसलिए आपने जस्ट फॉलो किया, तो यू मे गेट अ बेनिफिट ऑफ गेटिंग टू अ बेटर ऑप्शन। बट उसी के साथ मैं वो बोला कर्मणा देव नेत्रेण, वो एक एस्पेक्ट है। दूसरा, कर्मणो गहना गति, कर्म की जो गति है इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मतलब इससे करने से क्या होगा इसका ना, वो कॉम्बिनेशन से क्या निकलता है, नॉट ऑलवेज वी कैन असर्टन कि वैसे ही उसका कंक्लूजन आएगा। इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, वही बोल रहा हूँ कि वो ऐसा हुआ तो ऐसा है, ऐसा हुआ तो ऐसा है, तो ऐसा नहीं होगा, तो अनेक फैक्टर्स उसमें आएंगे। नहीं, वो तो प्रिंसिपली आप देख ही सकते हैं, पर मैं बोलने का इधर पॉइंट है मेरा, तो मेरा बोलने का इतना पॉइंट है कि अभी देखो कुछ गलत कहीं हो रहा है, तो किसी का एक्सट्रीम केस में कुछ तो हो गया, इस पे अत्याचार कर दिया, कुछ तो हो गया, तो यू कैन ऑलवेज से इट कि भाई इसका कर्मा था इसलिए इसको पड़ा। वो कर्मा है भी, होता भी है, बट एटलीस्ट ये वोकली काफी बार हम उसको नहीं बोलते ऐसा। एक्सट्रीम केस देखो, किसी ने सुसाइड किया, या फिर किसी का रेप हो गया, क्या बोलेंगे अभी इसका कर्मा था लास्ट लाइफ पे इसलिए इसको ऐसा मिला? इट इज वेरी इनसेंसिटिव टू से लाइक दैट, आई एम जस्ट सेइंग। पर along with that, principally we do understand there is something involved, कुछ तो इन्वॉल्व है उसमें, कुछ चीजें हैं पास्ट की जिसका एक और रिएक्शन है, समझ रहे ना? तो वो है, पर उसी को हम लोग वी मे नॉट मेक ए बी वोकल अबाउट इट, और वी डोंट जज पीपल बेस्ड ऑन दैट, भाई देखो कर्मा था, मिला भी उसको रिएक्शन नहीं। वी डू सिंपथाइज विद देयर सिचुएशन, है ना? वी डू अंडरस्टैंड, ठीक है जो हुआ है, बट नाउ लेट्स मूव अहेड। उसमें वो मूड में हम लेते हैं उसमें, लेट्स मूव अहेड, अदरवाइज हम लोग अभी सोल के बाहर निकल नहीं पाएंगे। सोल के बाहर निकल के अगला सेक्शन कंप्लीट करना है, कौस्तुभ ने बोला है मुझे करने के लिए। ओके, why should he be afraid or of aggrieved at the death of his relative since he was discharging his proper duty? दूसरा कारण जो मैंने आपको दिया था, he did not deserve to break the law, thereby becoming subjected to the reactions of sinful acts, of which he was so afraid. By ordering the discharge of proper duty, he would not be able to stop death of his relatives, and he would be degraded due to his selection of a wrong path of action. देखो चलो, अर्जुन बोलते मैं नहीं मारूंगा, वो लोग तो मरने वाले ही है एनीवेज, एनीवेज मरने वाले हैं अपने गति से, अपने टाइम से, है ना? बस अर्जुन विल बी नाउ इम्प्लीकेटेड विथ व्हाट, फॉर नॉट चूजिंग द राइट पाथ, इफ इट डजंट फाइट एंड किल। अर्जुन का इम्प्लीकेशन क्या होगा उसमें? अरे भाई इसने अपना ड्यूटी नहीं किया, हाँ, या इन दैट केस, इसलिए मैंने आपको क्यों एक्सप्लेन किया, व्हाई डिड आई एक्सप्लेन द वर्ड ड्यूटी एज कर्तव्य? सी, कृष्णा ने बोले थे आप कर सकते हो, ऐसा नहीं बोल रहे कृष्ण यहाँ पे, करना है ड्यूटी। हाँ, कशाला ड्यूटीला, नो एस्केप। इसलिए ड्यूटी को क्यों बोल रहा हूँ मैं, ड्यूटी मीन्स कंपलसरी है, वो जहाँ पे वर्ड वी आ गया कंपलसरी है। उसको क्या बोलते हैं, उसको कोई डिटूर नहीं ले सकते आप, उसमें कहीं शॉर्टकट नहीं निकाल सकते आप, वो तो करना ही है। वो ऐसा एक टोल पॉइंट है ना? ऐसा पॉइंट है कि जैसे आप उसको पास ही करना पड़ता है आपको, पास, उसका बाईपास ही नहीं है मतलब कुछ, उसी को ड्यूटी बोलते हैं। अगर बाईपास कुछ कर सकते हैं आप, तो देन दैट्स कॉल्ड डिफरेंट, दैट्स नॉट ड्यूटी। डजंट मेक सेंस, ड्यूटी, कर्तव्य। 28।
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ता मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेव देवना. All created beings are unmanifest in their beginning, manifest in their interim stage, and unmanifest again when annihilated. So what need is there for lamentation? तो बार बार उसी पे कृष्णा आ रहे हैं. क्यों तुम लैमेंट, बेसिकली कृष्णा का डिटरमेंट है कि उसका लैमेंटेशन निकालना है बाहर. अभी हर श्लोक में लैमेंटेशन के ऊपर ही बार बार आ रहे हैं. इसलिए मैंने बोला कि हर श्लोक के लास्ट लाइन में वर्ड वर्ड कॉमन वाला वर्ड रिपीट हो रहा है. सोचितुम, लैमेंट, है ना. या फिर 26 में भी है, नानु सोचितम 25 में भी है, 25 में है, 26 में है, 27 में है, 28 में है. अलग वर्ड यूज किया है, परिदेव देवेना, देवना. Provided that's under the supervision of someone better than us. Not that we decide कि भाई ठीक है इसमें मेरे को लैमिनेशन नहीं करना है तो चला दो आगे चीजें. Have some super. Arjuna had superior supervision of Krishna. वो सुपरविजन उनका काम चल रहा है इसलिए for him it's a duty, but we can't predefine our duties based on what I feel it's my duty, है ना. ठीक है, टेक्स्ट 28. So basically in this sloka Krishna talks about death generates no loss irrespective of the philosophy followed. इसमें 28 में ये कहा गया है, डेथ जनरेट्स नो लॉस. डेथ से कुछ लॉस नहीं होता है, चाहे जो फिलॉसफी फॉलो करना है आपको करो. आप बोले बौद्धवाद, नो लॉस. आप बोले ठीक है सोल है, फिर भी नो लॉस. जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु होता है, वो फॉलो करो, नो लॉस. ये वाला फॉलो करो जिसमें कहा गया कि एक समय अनमैनिफेस्टेड थे, फिर मैनिफेस्ट है, वापस से अनमैनिफेस्ट हो जाएंगे, नो लॉस. जो फिलॉसफी करना है फॉलो करना, इसमें से वो फॉलो करो. मृत्यु से किसी का भी कोई लॉस नहीं हो रहा है, ऐसा कृष्ण पे अल्टीमेट एक वो ना. अभी फाइनली लास्ट लास्ट श्लोक है 2-3 जिसमें कृष्ण स्टैम्प मार रहे हैं अभी की डेथ से किसी का लॉस नहीं हो रहा है ना. सो ये किसके बेसिस पे बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं मैनिफेस्टेशन के बेसिस पे बोल रहे हैं. तो इस परपोर्ट में प्रभुपाद जो है, सो शिला प्रभुपाद establishes that the loss of body is never a cause of lamentation whether you accept the existence of soul or not. सोल का अब बोलेंगे सोल है तो भी चिंता नहीं है, वो सोल नहीं है फिर भी कोई चिंता नहीं है. देयर इज नो लॉस आइदर वेज. फिर कोई बोलता भाई ठीक है, कोई व्यक्ति बोलता मैं सोल का एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या बोल रहे हैं? देन द बॉडी चेंजेस फ्रॉम अनमैनिफेस्ट टू मैनिफेस्ट एंड टू अनमैनिफेस्ट. उतना ही चेंज हो रहा है बस, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मैटर इज मेंटेन्ड, दस देयर इज नो रीजन टू लैमेंट. बोलते ना लॉ कौन सा थर्मोडायनामिक्स का लॉ है वो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी क्या बोलते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ठीक है, अभी पहले अनमैनिफेस्ट था, फिर मैनिफेस्ट हो गया, वापस अनमैनिफेस्ट हो गया, क्या फर्क पड़ा? ओवरऑल तो सारा सेम रहा ना. क्योंकि चिंता क्यों कर रहे हो? वाई आर यू लैमेंटिंग? कृष्ण इज सेइंग. इसमें एनर्जी दिया गया है ऑफ स्काई स्क्रेपर. सो स्काई स्क्रेपर मैनिफेस्ट फ्रॉम अर्थ. पहले क्या होता है, जब जैसे आपने देखा होगा ये गंगा धाम के 3 बिल्डिंग बने हैं, पहले क्या था वहाँ पे? मिट्टी था. अभी क्या है? बड़े बिल्डिंग्स है. हो सकता है 100 साल के बाद जब वो बिल्डिंग टूटेगा, वापस यहाँ पे क्या रहेगा? बैक टू अर्थ. तो क्या फर्क क्या पड़ा? अर्थ था पहले, अनमैनिफेस्ट था, फिर मैनिफेस्ट हो गया, वापस अनमैनिफेस्ट हो गया. अगर आप बोलते ठीक है भाई सोल है, पहले वाले हमने क्या देखा? सोल नहीं है. पर आप बोलते सोल है, तो फिर हमने जो पढ़ा था क्या श्लोक था जिसमें कहा कि ड्रेस ही बस चेंज होता है, वासना से जीर्णानि यथा विहाय. कि ठीक है भाई ये बस भाई कपड़े चेंज किए, कपड़े फट गए, पुराने हो गए, नए कपड़े ले लिए, तो तेरे व्हाट इज द लॉस? नया कपड़ा तो लिया ना, अच्छा तो है. पुराने कपड़े में कितने समय रहोगे? दैट ही सेइंग. और इट्स लाइक अ ड्रीम.
अब काफी बार आपको ड्रीम में आप देखते हैं कि अरे मैं तो आकाश में उड़ रहा हूँ, या फिर शेर आपके पीछे पड़ा है, वॉट एवर ड्रीम में कम लाइक दैट। बट एक बार पहले आप नॉर्मल स्टेट में थे, फिर ड्रीम में गए, और फिर वापस नॉर्मल में आ गए, ठीक है, उस तरह से होगा बॉडी का आपका। सो नोबडी लैमेंट्स फॉर द चेंज ऑफ द ड्रेस और सिचुएशन इन ड्रीम। ड्रीम में उसको लगा मैं रिची रिच जैसा एकदम रिच बन गया, और फिर एकदम जब उसको नींद खुला तो अलग ही कुछ उसको फील आया। तो ऐसा नहीं कि ड्रीम में मेरे को 1 लाख मिले फिर 10 लाख मिले, स्टिल अ ड्रीम, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। सो व्हाट इज वैदिक विजडम? इट एनकरेजेस सेल्फ रियलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द मटेरियल बॉडी। तो दिस इज व्हाट कृष्णा इज नाउ फाइनल, एकदम स्टैंप लगा रहे भैया तुम जो फिलोसफी फॉलो करना करो, लेकिन मरने से कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला है। डोंट गिव मी रीजन दैट आपको मारना नहीं है लोगों को। एंड देन कम्स द अमेजिंग वर्स 29th। उसको अमेजिंग वर्स क्यों कहा गया है? बिकॉज इट टॉक्स अबाउट आश्चर्यवत, आश्चर्य के बारे में बात करते हैं। सो श्लोक गोज लाइक दिस। आश्चर्यवत पश्यन्ति कश्चिदेनन्, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यम्, आश्चर्यवत चैनम अन्य शृणोति, श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित्। Some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all. That means still amazing. तो परपोर्ट में आप थोड़ा सा श्लोक के नीचे जाएंगे, शुण्वन्, हो ना, श्रवणायपि बहुवीर, उसके नीचे कुछ 2-3 लाइन नीचे, men with poor fund of knowledge and men with who are not austere, मिला क्या? Men with poor fund of knowledge or men who are not austere cannot understand the wonders of the individual atomic spark of spirit, even though it is explained by the greatest authority of knowledge, who imparted lessons even to Brahma, the first living being of the universe. ये फर्स्ट पॉइंट है ना? इसमें क्या बोला गया है? मैन विथ पुअर फंड ऑफ नॉलेज, उसको नॉलेज ही नहीं है, बस साक्षात कृष्ण बोलने के बाद भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, आता आता है कि भाई सोल के बारे में। सेकंड पॉइंट, सेकंड रीजन वी कैन से इसको समझ में नहीं आता है। हाँ, तपस्या, या तपस्या इज नेसेसरी ना, वो तो बेसिस है नॉलेज के लिए। देखो, वी फॉलो 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स, दैट्स तपस्या। वो जो व्यक्ति फॉलो करना चालू करता है, सबसे पहले ह्यूमन बीइंग बनता है। हाँ, या ताप, जब अब दीक्षा, दीक्षा के प्रोसेस में वन ऑफ द स्टेप इज ताप, ऑस्टेरिटी। फॉर अस ताप इज 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स। पता है आपको दीक्षा के अलग अलग स्टेप्स होते हैं। ताप इसमें एक होता है कि नाम, यू गेट अ नेम। मंत्र, कुछ फॉरस वो है ब्राह्मण दीक्षा वाले मंत्र। फिर एक आता है यज्ञ, यज्ञ होता है। फिर होता है ताप, फिर होता है ऊर्ध्व पुंड्र, तिलक। तो दीज आर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इनिशिएशन। उसमें से हमारे लिए ताप है। सी बाकी इसमें क्या होता है ना, बाकी संप्रदाय में वो क्या तिलक को गर्म करके अलग अलग पार्ट्स पे लगाते हैं, दैट इज कंसिडर्ड ताप उनके लिए। बट फॉर प्रभुपाद ने हमको बोला है ताप हमारे लिए क्या है, 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स। तो 4 रेग्स हम जब अच्छे से फॉलो करते हैं, देन दैट हेल्प्स अस टू एक्चुअली गेन नॉलेज। अगर जो फोर, कृष्ण गीता में आगे आगे चल के श्लोक आएगा कि जो व्यक्ति, वन हु इज नॉट फ्री ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, फॉर हिम नॉलेज, टू एक्वायर नॉलेज वेरी डिफिकल्ट। वो ले नहीं पाता नॉलेज कृष्ण के बारे में। ये श्लोक, हाँ। नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि 4 रेगुलर प्रिंसिपल इज नॉट डायरेक्टली भक्ति, वो भक्ति नहीं है, बट दे रियली मेक्स अस ह्यूमन बीइंग ओनली। और वहां से फिर आपको भक्ति का अलग प्रोसेस चालू होगा। और ह्यूमन स्टेज के आने के लिए वी नीड दिस ताप, वी नीड दिस ऑस्टेरिटी, अदरवाइज वी कांट।
कुठला? मी असं कोट केलं की अनलेस अँड अंटिल वन्स सेन्स ग्रेटिफिकेशन इज स्टॉप्ड, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन भक्ति गो इल टुगेदर, दे कैन गो हैंड इन हैंड। अब बोले मैं भोग भी करूंगा और भक्ति भी करूंगा तो नहीं होगा। हाँ, so they are not pure duties no, और they are not achieving actual goal। वो तो मतलब कुछ अपने कार्य में अटके हैं। दे गेट स्केर्ड व्हेन समवन जब उनको लगता है ये शायद मेरा पोस्ट ले लेगा, तो उनको डर लगता है मेरा पोस्ट चला जाएगा। व्हेन सम स्टेज इज डूइंग तपस्या, इमीडिएटली दे सेंड सम अफसर, उनको लगता है ये तपस्या क्यों कर रहा है, उसको मेरा पोस्ट चाहिए। दैट्स व्हाट मेक्स देम मिश्रित। दे आर अटैच्ड टू सन ग्रेटिफिकेशन आल्सो, एंड दे वांट टू डू सम सर्विस आल्सो। एक्चुअली अल्टीमेटली एनीवन हु वांट्स टू गो बैक टू गॉड, एनीवन, he has to come out of that मिश्रित भक्त स्टेज। जैसे आप देखेंगे एग्जांपल ऑफ नल कुंवर एंड मणिग्रीव, मिश्रित भक्त थे पहले। नाउ दे गॉट अ कर्स of नारदोनी, इट वाज एक्चुअली मर्सी ऑन देम, वेयर दे रियलाइज कि अरे यार मैं तो इतना क्या फालतू में इतना सब कर रहा हूँ मैं, आई एम मिस यूजिंग माई अपॉर्चुनिटी व्हाट आई एम हैविंग। तो जैसे उनको फ्रीडम मिला वहां से, कर से, इमीडिएटली दे बिगेन देयर भक्ति। दैट्स एग्जांपल। काय झालं? दैट्स आई एम सेइंग कि दैट इज लाइक मोर इंट्रिकसीज अबाउट दैट एस्पेक्ट। बट सी देखो, वैकुंठ मिलना भी बहुत बड़ा बात है। काफी बार हम लोग वैकुंठ को ऐसा एकदम मार्केट के जैसे ट्रीट करते हैं। जैसे मार्केट हम जा रहे हैं, ठीक है, वैकुंठ में मार्केट नहीं जाना, मैं ना सब्जी दर से ले लूंगा। सी अंडरस्टैंड वैकुंठ, हालांकि है, रोजी जो बोल रहे हैं उसमें गलत नहीं है कुछ। इस सेइंग कि जो एब्सोल्यूट चीज, जैसे अब देखेंगे ना गौड़ीय वैष्णव के, मैंने एक बार बहुत पहले बोला था ये पॉइंट, कुछ आप में से कुछ लोग थोड़े से डिस्टर्ब हो गए थे पॉइंट के साथ कि अल्टीमेट गौड़ीय वैष्णव का जो अल्टीमेट गोल है, दैट्स व्रज भक्ति। नॉट इवन दे डोंट वर्शिप इवन द्वारका कृष्णा, नॉट इवन दे वर्शिप विष्णु तो दूर हो गए। द एब्सोल्यूट लेवल पे दे वर्शिप ओनली व्रज कृष्णा, वृंदावन के कृष्ण के वर्शिप करते हो बस। दैट्स लाइक एकदम पिन पॉइंटेड फोकस्ड गोल होता है एक गौड़ीय वैष्णव का, खासकर जो रूपानग है उनका, है ना। नाउ along with that if you see there is many others who can be like, वो शायद, अब देखें मुरारी गुप्ता का एग्जांपल है। मुरारी गुप्ता चैतन्य चरितमृत में किसका वर्शिप करते थे वो? चैतन्य महाप्रभु, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड है, वो उनको बोले भैया तुम है ना राम का नाम मत लो, तुम कृष्ण का नाम लो। वो सोचते जाके घर पे आते बोलते अरे भगवान ने बोला है कृष्ण का नाम लो, लेकिन मेरे से लिया नहीं जा रहा है। तो ही वॉज प्लान फॉर सुसाइड, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, आदेश फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ मैं पर महाप्रभु बिकेम वेरी हैप्पी एंड प्लीज विद हिज अफेक्शन अटैच। इस वहां पे बोलते हैं महाप्रभु, अरे धन्य वो भक्त है जो भगवान को छोड़ते नहीं, या धन्य वो भगवान अपने भक्तों को छोड़ते नहीं। देयर ही कोट्स दिस श्लोका। सो मैं इतना पॉइंट बोलना चाहूंगा कि ठीक है, एटलीस्ट समवेयर ही इज बियॉन्ड मटेरियल रेल्म। ठीक है, उनको गोलोक प्राप्त नहीं हुआ, दैट्स वन थिंग, बट उसी के साथ वो तो मतलब वैकुंठ प्लैनेट इज नॉट लाइक वन ऑफ द प्लैनेट्स इन दिस वर्ल्ड। वो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक प्लैनेट है ना। वो व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से गया वहाँ पे, बट एटलीस्ट इज देयर, दैट कैन बी अप्रिशिएटेड। दैन की भाई ठीक है उसको नहीं मिला, एटलीस्ट वैकुंठ मिला तो मैं बोला काफी बार हम वैकुंठ को ऐसा ट्रीट करते हैं हमारे थॉट में कि अरे वो तो एकदम ऐसा कुछ तो एकदम घटिया जगह है, मुझे नहीं जाना वैकुंठ में। एज इफ कि हमारे पास पूरा मेन्यू कार्ड, मेन्यू लिस्ट है कि बस मैं बस चूज ही करूंगा, मुझे ये वैकुंठ नहीं, गोलोक जाऊंगा मैं पर क्या हमारी उतनी हैसियत है क्या ऐसा करने की? वो भी हमको देखना चाहिए। ओके, लेट्स गो ऑन। हाँ, नहीं एक्चुअली बरस में क्या होता है ना, काफी समय क्या होता है, ये वर्ड को इंटरचेंजेबल यूज किया जाता है। वैकुंठ प्लैनेट्स, जब वैकुंठ बोला जाता है तो इट में ऑल्सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत बेसिकली। हाँ, इट्स पूर्ण जगत है, मतलब फक्त
थोडे ग्रेडेशन्स आहेत ना. ग्रेडेशन कुठल्या बेसिसवरती आहे? ऑन व्हॉट बेसिस ग्रेडेशन्स आर देअर? फ्लेवर है ना, व्हाट मूड द डिवोटीज हैविंग फॉर द लॉर्ड. जो भी प्लेनेट वो मूड के लिए फेवरेबल है, वो मूड में वो डिवोटी जाता है ना. अगर सपोज कोई व्यक्ति साख्य रस में है और वो गलती से वैकुंठ चला गया, तो यार क्या हो रहा है, हर हर स्टेप पे आचमन कर रहे हैं, एकदम भगवान की स्तुति हो रही है. वो बोले कि यार मैं तो खेलता हूँ उनके साथ, उनके गले पे बैठता हूँ, मारता हूँ, उनको हराता हूँ, और ये लोग इतने एकदम उनको ऐसा एकदम एकदम रेवरेंस में सब डील कर रहे हैं. तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कहाँ वो व्यक्ति का वो भाव कहाँ मैच होता है. द टाइप ऑफ भाव ही डेवलप्स द टाइप ऑफ प्लेस ही गोस. यम यम वापी स्मरण भावान. सुना है भावान. तो भाव जैसा आप डेवलप करोगे वहां पे आप जाओगे. उसका भाव अगर वैकुंठ वाला है तो वहां जाएगा. जी, हनुमान को आप फोर्सफुली गोलोक में नहीं डाल पाओगे, है ना. और उससे ऊपर बात, हनुमान जी को ऐसा इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि अरे मैं तो है ना वैकुंठ में हूँ तो गोलोक में तो जा नहीं पाया मैं. इज हैप्पी देयर, इज एक्सटेटिक देयर. स्पिरिचुअल में जो झाड़ भी है ना वो भी खुश रहता है, उसको ऐसा लगता है मुझे गोपी बनना, उसको ऐसा नहीं लगता है. ठीक है मैं झाड़ हूँ, कृष्ण को फल दे रहा हूँ, छाव दे रहा हूँ, उसमें खुश है वो. तो बेसिकली अ प्लेस, इट्स अ प्लेस, मोर देन दैट इट्स अ कॉन्शियसनेस, और चेतना है, आध्यात्मिक जगत, जो हमको यहाँ पे रियलाइज करना पड़ेगा यहाँ पे रहते हुए. चेतना वो, वेर वी फील, एटलीस्ट उसका एक बेसिक सिम्टम प्रॉपर देते हैं कि वेर वी फील एवरी वन एल्स इज बेटर देन अस. जिस दिन आपको ये फील होना चालू हो जाएगा ना, समझना आपको वैकुंठक भाव आ रहा है तो चालू हो गया ना. अगर ये सब नहीं आ रहा तो सोचो अभी बहुत बहुत अभ्यास करना है हमको अभी. बहुत साधना बचा है अपना. नंबर सेकंड, owing to gross material conception of things, most men in the age cannot imagine how such a small particle can become both so great and so small. दूसरा कारण. हाँ, पहला मैन विथ स्मॉल पुअर फंड ऑफ नॉलेज जो स्टडी नहीं करते वो वाला. दूसरा हमने देखा कि ये ग्रॉस मटेरियल कंसेप्शन के कारण क्या हो रहा है, वो व्यक्ति समझ इमेजिन नहीं कर पा रहे कि इतना छोटा सा पार्टिकल इतना सारा कैसे कर रहा है. वो बड़ा भी है छोटा भी है, दोनों है. तीसरा, illusion by material energy, people are so engrossed in subject matters of for sense gratification that they have very little time to understand the question of self understanding, even though it is a fact that without this self understanding all activities result in ultimate defeat in the struggle of existence. The people are so much absorbed, engrossed in sense gratification का टाइम ही नहीं है ये सब इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, समझने के लिए. Number four, some people who are inclined to hear about the soul may be attending lectures. आप जैसे बैठे हैं, may be attending lectures in good association, but sometimes owing to ignorance, they are misguided by acceptance of the super soul and the atomic soul as one without distinction of magnitude. मतलब वो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, उसमें डिस्कशन हो रहा है, और बट कभी कभी क्या होता है ना, वो सामने वाला व्यक्ति मायावादी है, वो बोल रहा है भाई सोल एंड सुपर सोल एक ही है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं दोनों का. हालांकि सुन रहे हो, उनके सुनने की इच्छा है. मतलब इसका मतलब कि ये चौथा स्टेज जो मैं बोल रहा हूँ, ये ये स्टेजेस है ना मैं जो बोल रहा हूँ आपको. पहला स्टेज में हमने क्या देखा, पुअर फंड ऑफ नॉलेज, वो उसको ब्रैकेट कर सकते हैं, नंबर वन लगा सकते हैं उसको. नंबर टू क्या था, ओविंग टू ग्रॉस मेटल कंसेप्शन से लेके तो सो ग्रेट एंड सो स्मॉल, वहां तक. नंबर सेकंड. नंबर थर्ड में इल्यूजन बाय द मेटल एनर्जी, इतना इनग्रॉस से भोग करने में टाइम ही नहीं है. ये सेकंड लास्ट लाइन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस तक का उसका पॉइंट है. नंबर फोर नया पैराग्राफ से स्टार्ट हो रहा है. Some people who are inclined to hear about the soul may be attending lectures in good association, but sometimes owing to ignorance, they are misguided by acceptance of the super soul and the atomic soul as one without distinction of magnitude. दोनों एक ही है. ये होगा पॉइंट नंबर फोर. एंड नंबर फाइव है, it is very difficult to find a man who perfectly understands the position of the super soul, the atomic soul, their respective functions and relationship, and all major and minor details. ये हो गया 5 नंबर का. आगे चल के बोल रहे हैं, एंड इट इज स्टिल मोर डिफिकल्ट टू फाइंड अ मैन who has actually derived full benefit from knowledge of the soul and who is able to describe the position of the soul in different aspects. Sixth point,
एक एक पहले पहले कर लो भैया, मैं मेरे को अभी ये सेक्शन पहले खत्म करने को टेंशन आ गया, 11:30 बज गया है ना। ये लास्ट सेक्शन खत्म नहीं हुआ अपना, वो खत्म करने दो, बाद में एक साथ पूछो अभी। बट इफ समहाउ और अदर वन इज एबल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सोल, देन वंस लाइफ इज सक्सेसफुल। ये है 8वां पॉइंट, जो एक अल्टीमेटम मतलब फाइनल स्टेज उसका। द इजिएस्ट प्रोसेस फॉर अंडरस्टैंड The easiest process for understanding the subject matter of self, however, is to accept the statements of Bhagavad Gita spoken by the great authority Lord Krishna without being deviated by other theories. उसका accept करो आप शब्द प्रमाण। But if but it also requires a great deal of penance and sacrifice, either in this life or in the previous ones, before one is able to accept Krishna as supreme personality of Godhead. Krishna can, however, be known as such by the causeless mercy of the pure devotees and by no other way. पेनांस, पेनांस से आपको तकलीफ है ना? पेनांस, हाँ काय सी वन इज दैट इज कॉल्ड साधना सिद्ध, वन इज कृपा सिद्ध। साधना सिद्ध नाही आपल्या एंडेवरने पण साधना करत करत सेवा करत करत पेनान्स सॅक्रिफाइस करत करत ही अचीव दैट, दैट इज कॉल्ड साधना सिद्ध। दोन्ही बद्दल सांगताय, वन कॅन बी द साधना सिद्ध और वन कॅन बी कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध म्हणजे काय? देयर इज समवन हु इज एलिवेटेड देन अस और कृष्णा हिमसेल्फ मे ऑफर हिज कृपा टू अस एंड दैट विल ब्रिंग अस टू दैट प्लेटफॉर्म। सी वन इज लाइक क्लाइंबिंग द स्टेयरकेस, वन इज लाइक सिटिंग इन द लिफ्ट एंड स्ट्रेट गोइंग। दोन्ही प्रभूंनी सांगितले तो। मर्सी इज कॉजलेस, यू कैन डू साधना टू, अरे भाई मैंने इतना साधना किया तो मुझे मर्सी मिलना चाहिए, दैट वी कैंट से। आप देखेंगे गीता पांडा का एग्जाम्पल है, सीसी में आता है गीता पांडा, सॉरी साउथ इंडियन ब्राह्मण। गीता जो गीता पढ़ते थे, गुरु ने बोला था गीता पढ़ो, वो ऐसा उनको पढ़ते भी नहीं आता था क्या लिखा है उधर, काफी बार कभी उल्टा ही पकड़ लेते थे, है ना। पर वो रोते थे। एंड देयर वर मेनी अदर ब्राह्मणास हु आर एक्सट्रीमली लर्नड इन गीता। आप उनको एक वर्ड बोलो उसके 10 मीनिंग बताएंगे आपको, है ना। बट महाप्रभु नेवर गॉट अट्रैक्टेड बाय देम। महाप्रभु ने पूछा भी तुम रो क्यों रहे? वो बोले मेरे गुरुजी ने मुझे बोला है गीता पढ़ो, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, मैं इतना लर्नेड नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ। पर फिर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कृष्ण है जो परम पुरुष भगवान है, और वो एक सारथी बने हैं, है ना। और वो देख के मुझे रोना आ रहा है। तो महाप्रभु गॉट गॉट हैप्पी विथ हिम, उसको उसको एम्ब्रेस कर दिया महाप्रभु ने। तो बोलने का पॉइंट ये है कि व्हाट अट्रैक्टेड द मर्सी, वाज इट द साधना? नो, दैट वाज हिज, वी कैन से हिज, उनका एक आउटलुक या फिर उनका अप्रोच, उनको गुरु के दिए, गुरु ने वो सिंसियरिटी वी कैन से। सो दैट्स व्हाई दे से सिंसियरिटी अट्रैक्ट्स ग्रेस। वी नेवर हियर द स्टेटमेंट दैट साधना अट्रैक्ट्स ग्रेस, grace is kripa. So sincerity is the only thing which can attract the grace. One can do his sadhana sincerely, that may also attract the grace. But if one does sadhana just for sake of doing, that may never attract the grace. Okay, मतलब ये ठीक है, चले आगे। No, causeless मतलब there is no reason for it to, for Krishna or devotee to offer. There is no reason for it. अभी देखो स्टोरी बात है ना, और एक चीज, एक बार एक व्यक्ति होता है, वो बोलता है ना मैं धूप लगाऊंगा, पर मैं विष्णु को है ना उसका सुगंध नहीं ले लूंगा। वो विष्णु के नाक में कॉटन डाल देते हैं, वो ऊपर से भगवान हंसने लगे उसको देखते क्या कर रहा है करके। दैट अट्रैक्टेड द मर्सी। मतलब उसको क्या था बोलो, मतलब बेसिकली वो इतना पर्सनल था भगवान के साथ कि उनको पता है डीटी के नाक में मैं डालूंगा, कॉटन डालूंगा, उनको सुगंध नहीं आना चाहिए, मेरे डीटी को सुगंध आना चाहिए। तो उससे भगवान प्रसन्न हो गए। तो किस बात से भगवान प्रसन्न होंगे वो तो वही जानते हैं अभी। दैट वी कांट फोर्स कृष्णा टू बिकम हैप्पी और प्लीज्ड विद समवन।
what to speak our own sense. Text 30. So text 30 is a conclusion of Jnana section. ये आखिरी उसका श्लोक है. So he's saying here, O descendant of Bharat, he who dwells in the body can never be slain. Therefore, you need not to grieve for any living being. As a Kshatriya, he should not abandon his prescribed duties out of fear that his grandfather and teachers will die in the battle. That's the conclusion of this particular shlok. So the Lord now concludes the chapter of instruction on this immutable spirit soul. In describing the immortal soul in various ways, Lord Krishna establishes that the soul is immortal and the body is temporary. Therefore, Arjuna, as a Kshatriya, should not abandon his duty out of fear for the grandfather and teacher Bhishma and Drona will die in the battle. On the authority of Sri Krishna, one has to believe that there is a soul different from the material body, not that there is no such thing as soul, or that living symptoms develop at a certain stage of material maturity, resulting from the interaction of chemicals. Though the soul is immortal, violence is not encouraged, but at the time of war, it is not discouraged when there is actual need for it. That need must be justified in terms of sanction of the Lord and not capriciously. कि मुझे लग रहा है कि वॉर करना चाहिए इसलिए नहीं. It has to be sanctioned. ठीक है, now let's enter the section 3 of this chapter. 2.31 to 2.38 talks about karma kand. Krishna spoke about jnana, but then he's saying to fight. Now we'll talk about karma kand, but still he'll say fight. What is karma kand? What is karma kand? Practice to stay in this world. Acha, may not be complete. Following. So by performing prescribed duty, gain material enjoyment. That is called as karma kand. By performing prescribed duty. What is prescribed duty? क्या बोलते हैं उसको हम संस्कृत में? नहीं, वो तो मैंने बस ड्यूटी के लिए बोला था. प्रिस्क्राइब ड्यूटी स्वधर्म है ना. ठीक है, लेट्स सी. So now in the chapter of this section karma, text number 31 and 32, it begins from 31 goes to 38. So 31 32 will talk about you should utilize the opportunity of dharma yuddha. Krishna will tell Arjun. 31-32 में क्या बोल रहा है, क्या होने वाला है? Krishna is going to tell you should utilize the opportunity of dharma yuddha. Text 33 में Krishna is going to tell giving one's swadharma is sinful. Yeah, giving one's swadharma is sinful. नंबर 34 से 36 में कृष्णा बोलेंगे पीपल विल डिसऑनर यू इफ यू रन अवे. है ना, वहां पे बोलेंगे कि भाई डिसऑनर इज वर्स देन डेथ. है ना, अच्छा है कि अब मर जाओ तुम युद्ध करते करते, भागने से अच्छा. 37 कृष्णा टॉक्स अबाउट विन विन सिचुएशन ऑफ यू फॉर यू. आपके लिए विन विन है. क्या विन विन है तब देखते हैं हम लोग. 37 श्लोक में बोलेंगे. 38 में इफ यू आर इक्विपॉइज्ड यू विल नॉट गेट सिन. तो इस तरह से 31 से लेके ये सब क्लियर सबको. 31 32 में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? यू शुड यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी फॉर धर्म युद्ध. 33 में क्या हो रहा है? गिविंग अप स्वधर्म इज सिंफुल. 33 में 34 से 36 में क्या हो रहा है? पीपल विल डिसऑनर यू इफ यू रन अवे. 37 में विन विन सिचुएशन फॉर यू. 38 में इफ यू आर इक्विपॉइज्ड यू विल नॉट गेट सिन. ठीक है, टेक्स्ट 31 स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि. आगे बस अर्हसि. धर्मयाद धर्मयादि ही युद्ध श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते.
Considering the specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principle, and so there is no need for hesitation. Now, what is the Swadharma for different Varnas? हर एक वर्ण का अपना अपना स्वधर्म होता है. You know that? Now let's go to Bhagavad Gita, chapter 18, text 42, 42, 43, 44. 18.42. शमोदमस्तप शौचम शांतिमार्जम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम बर ब्रह्म कर्म स्वभावजम. Duties of a Brahmana are mentioned here: peacefulness, self control, austerity, purity, tolerance, honesty, knowledge, wisdom, and religiousness. These are the natural qualities by which Brahmanas work. तो शांति का मतलब यहाँ पे जैसे टॉलरेंस है ना, इट ऑल्सो मीन्स फॉरगिवनेस. Forgiveness is a quality for Brahmana. That one has to remember. So all this thing, when you see in someone, that means he's a Brahmana. आगे शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चापि अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च शात्रम कर्म स्वभावजम. Now what are the qualities of Kshatriya? क्षत्रिय का क्या स्वभाव है? हीरोइज्म, शौर्य, तेजो, पावर, धृति, डिटर्मिनेशन, है ना. फिर आगे क्या है? दाक्ष्यम, रिसोर्सफुल. आगे है युद्धे च पलायनम. सो कृष्णा अल्टीमेटली इन द सेकेंड चैप्टर वेर वी आर इज ट्राइंग टू टेल कृष्णा, भाई तुम्हारा स्वधर्म क्या है? योर स्वधर्म इज युद्धे च पलायनम. यू कैंट रन अवे फ्रॉम द वॉर बिकॉज यूर अ क्षत्रिय. कृष्ण अर्जुन बोल रहे थे ना, मैं जाऊंगा जंगल में, मैं भिक्षा मांग के जीऊंगा. पॉसिबल नहीं होगा. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अर्जुन टू स्टे लाइक दैट, बिकॉज उनका स्वधर्म जो क्षत्रिय है ना, वो उनको अलाउ नहीं करेगा. सोचो अगर कोई अर्जुन गया भिक्षा मांगने के लिए किसी घर में, ओम भगवती भिक्षाम देहि, और उसने कुछ तो उसका इंसल्ट कर दिया, तो तुरंत तलवार निकालेगा मारने के लिए. वो स्वभाव है उसका. ही कांट बी ही कांट. दैट्स व्हाई कृष्णा क्यों ज्यादा एस्टोनिश हो रहे हैं. अरे भाई तुम क्षत्रिय हो, तुम नहीं कर पाओगे ये. तुम क्यों बात कर रहे हो जाके मैं जंगल में जाके भिक्षा मांगूंगा? आपके लिए इम्पॉसिबल है वो चीज. कृष्ण बोल रहे हैं. दैट्स व्हाई सेइंग युद्धे च पै पलायनम. ही कांट रन अवे फ्रॉम द वॉर. दानम, जनरस होता है. ईश्वर भाव, सी इंटरेस्टिंगली ईश्वर भाव का प्रोफाइल लिखते लीडरशिप. लीडरशिप, ईश्वर भाव. So these are the natural qualities of work for Kshatriyas. Krishi Goraksha Vanijam Vaishya Karma Sabhavajam. Farming, cow protection, and business are the natural work for the Vaishyas. Paricharyatmakam karma Shudrayasyapi Sudrayasyapi Sabhavajam. Paricharya. What is Paricharya? Service to others. अपने डीटी में, इन डीटी सर्विस देयर इज वन सर्विस कॉल्ड एज डीडी. दे कॉल इट डीडी, दासानुदास. तो दासानुदास सर्विस का एक्चुअल टेक्निकल नाम है परिचर्या. परिचर्या सेवा, असिस्टिंग अदर्स इज परिचर्या. तो शूद्रास दे आर नोन फॉर देयर सर्विस एटीट्यूड एंड देयर सर्विस बोथ. मतलब काफी हमको लगता है शूद्र क्या है, तो शूद्र है ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, बट एक्चुअली बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है वो. परिचर्या एंड उसका सेवा भाव दोनों. तो दीज आर ऑल डिफरेंट. लोगों का अलग अलग स्वधर्म है जो हमने देखा अभी यहाँ पे. कमिंग बैक टू टेक्स्ट 31, सो वेर इज टॉकिंग अबाउट दिस स्वधर्म. तो एज वी गो अहेड इन द परपोर्ट, आगे थोड़ा जाइए, लास्ट पैराग्राफ में आइए. हाँ, उससे पहले देर इज एक श्लोक कोट किया परपोर्ट में.
और श्लोक से पहले बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा है प्रभुपाद ने, नॉन वायलेंस इन पॉलिटिक्स में बी डिप्लोमेसी, नॉन वायलेंस इन पॉलिटिक्स में बी अ डिप्लोमेसी बट इट इज नेवर अ फैक्टर और प्रिंसिपल। ये क्या स्टेटमेंट है, मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। श्लोकाच्या वरती, आहवेशेषु आवहशेषु मिथो, परपोट मध्ये है ना, नॉन वायलेंस इन पॉलिटिक्स में बी डिप्लोमेसी बट इज नेवर अ फैक्टर और अ प्रिंसिपल। उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे नॉन वायलेंस पे अटैक किया प्रभुपाद ने। हैं? अरे एकदम क्लियर तो इसमें क्या है, नॉन वायलेंस इन पॉलिटिक्स में भी डिप्लोमेसी। कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में बोला वी शुड बी नॉन वायलेंट, और डिप्लोमेटिक वे हो सकता है डील करने के लिए, पर वो कोई प्रिंसिपल नहीं है ऐसा कि नॉन वायलेंस करना ही चाहिए, हमेशा नॉन वायलेंस ही होना चाहिए। वायलेंस नेसेसरी है। हाँ, इन द बैटलफील्ड, उसका जो ट्रांसलेशन है परपोर्ट के दो श्लोकों का, इन द बैटलफील्ड अ किंग और क्षत्रिय while fighting another king envious of him is eligible for achieving the heavenly planets after death, as the Brahmana also attained the heavenly planets by sacrificing animals in the sacrificial fire. Therefore, killing on the battlefield on the religious principle and killing animals in the sacrificial fire are not at all considered the acts to be acts of violence, because everyone is benefited by the religious principles involved. The animal sacrifice gets a human life immediately after without undergoing a gradual evolutionary process from one form to another. The Kshatriyas killed on the battlefield also attain the heavenly planets, as do the Brahmanas who attain them by offering sacrifice. तो जो भी बेसिकली युद्ध भूमि में मरता है, ही गेट्स, कम से कम उसको हेवन मिलता है, और ड्यूटी डिस्चार्ज करते करते बड़ा उसके लिए। ठीक है। There are two kinds of swadharma, specific duties. As long as one is not liberated, one has to perform the duties of the particular body in accordance with the religious principles in order to achieve liberation. मिला क्या? When one is liberated, one's swadharma becomes spiritual and is not in the material bodily concept. In the bodily conception of life, there are specific duties for the Brahmana and Kshatriya respectively. And such duties are unavoidable. जो हमने पढ़ा, अभी लिस्ट पढ़ा है ना मैंने आपको लिस्ट, अभी 18.42-43 में, वो अनअवॉइडेबल है, वो करना ही पड़ता है। वो कब तक करना पड़ता है? जब तक व्यक्ति एक शरीर में है। सो वंस ही बिकम्स लिबरेटेड, वो समय उसका स्वधर्म बदल जाता है, इट बिकम्स स्पिरिचुअल। हम्म। हम्म। See these four varnas, even though you may say okay we can, जैसे बोलते थे ना, there are some people like in, क्या फिलोसफी है, रशिया में क्या फिलोसफी था, रशिया रशिया रशिया, दे हैड दिस कम्युनिज्म, कम्युनिज्म कम्युनिज्म लोग क्या बोलते हैं, वी शुड हैव अ क्लासलेस सोसाइटी, वी शुड नॉट हैव सच डिस्टिंक्शन, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, सब ह्यूमन से एक लेवल पे रखो, बड़ा पॉसिबल नहीं है। नेचुरली अब देखेंगे ना, कहीं पे भी देखो आप, सी इन एनी कंपनी देयर आर ऑलवेज सम ब्राह्मणास हु आर इंटेलिजेंट क्लास, देयर आर सम एडमिनिस्ट्रेटर जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, एंड देयर आर सम people who are dealing with commerce and everything, money, and there are some people who are always laborers or assistants. See, we are given Brahmanical training, we are offering that. Along with that, if we see,
ग्रेजुअली एवरीवन कम्स हिज ओन, अपनी जगह पे आके बैठ ही जाता है, सब लोग नेचुरली आके बैठ जाते हैं। बहुत नेचुरल है। इट्स नॉट ऑन बर्थ। सबसे पहले तो इट्स नॉट ऑन बर्थ, इट्स अबाउट ब्रह्म। उसका स्वभावजम क्या है, स्वभाव है वो बर्थ से उसका ज्यादा कनेक्शन नहीं है, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होता होगा बर्थ का, बट इट्स मेजोरिटी अबाउट द चतुर्वर्ण माया सिस्टम, गुण कर्म विभागशः। उसके गुण और कर्म के ऊपर विभागित है, डिपेंडेंट है। भले ही कोई व्यक्ति शूद्र का जन्म में हुआ है, बट इफ ही हैज कर्म एंड स्वभाव एज अ ब्राह्मण, ही कैन एक्ट एज ब्राह्मण। हाँ। या सो ब्राह्मण डजंट मेक अस मला ते रेकॉर्ड नव्हतं करायचं. पॉइंट हा है, सी पॉइंट इज दिस सिंपल, इवन दो वन इज जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज, second born. See again, Brahmana, they have varieties, they have levels. One is called as Dvij. See, पक्षी को भी द्विज बोलते हैं आप. हाँ. Similarly, second initiate को भी आप द्विज बोलते हैं. They are not Vipra. Vipra is another stage, is a higher stage than द्विज. विप्र और द्विज में फर्क क्या है? द्विज के पास थ्रेड है, विप्र के पास नॉलेज है. तो सिंपली बाय हैविंग, प्रभुपाद बोलते थे, सिंपली बाय हैविंग 25% पैसा, और या फिर आजकल ₹5 थ्रेड doesn't make one a brahmana, even though he may be having a thread and having some mantras. But unless and until he does yajan, yajan, pathan, dana, patigraha, that brahma karma savavajam, that makes him a brahmana. Someone may be having a Shudra attitude, but getting a Brahman initiation will simply make him Dvija, but not Vipra. Until and unless he starts following the 6 things what I told, yajan, yajan, pathan, dana, pratigraha, then only he can become actually Vipra. हाँ. See, even though he have a thread, but ultimately वो उसका नेचर इतना नेचुरल होता है ना, वो आ जाता है बाहर, वो आता है. फॉर एग्जाम्पल, मंदिर में देखो सारे काफी डिवोटीज अभी इनिशिएटेड, सेकंड इनिशिएटेड है. जो मैनेजर्स होते हैं ना, जो क्षत्रिय है, वो व्यक्ति के शातत्व आ जाता है, इवन दो ही में हैव अ थ्रेड इनिशिएटेड, भले वो डीटी वर्शिप भी कर रहा हो, पर वो स्वभाव जो है ना, वो आता है बाहर. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ मैनेजर. जैसे जो तो मैनेजर्स होते हैं, वो कैसे, दे आर लाइक क्षत्रियस, वी कैन से अपेरेंटली, बट दे आर सेकंड इनिशिएटेड आल्सो. तो सेकंड इनिशिएशन होना विल, दे आर वी कैन से द्विज, बट इफ दे आर स्टडिंग नाइसली, ये सब 6 चीज कर रहे हैं, देन दे कैन बिकम विप्रा. बट इट इज वेरी डिफिकल्ट. पर धर्म भयावह, ऐसा आता है आगे करके एक श्लोक में आता है, कृष्ण बोलते हैं दूसरों का धर्म करना ये भयावह है. कैसा है थोड़ा देखेंगे हम, इस पे विल डिस्कस मोर. हाँ. अरे मी तुला तेच सांगतोय बाळा, की जरी त्याचं इनिशिएशन झालं, दॅट डझंट मेक हिम अ ब्राह्मणा, दॅट मेक्स हिम अ विप्र, दॅट मेक्स हिम अ द्विज. इफ ही हैज टू बिकम अ ब्राह्मणा, ही हैज टू स्टडी स्क्रिप्चर्स. त्याला जे आवडतं ते किती केलं पाहिजे, जे स्वभाव आहे ते केलं पाहिजे. तुम्ही सांगताय की त्यांनी अध्ययन केलं पाहिजे. See, again, I'm saying if someone is willing to fight his nature, then only it is possible. उसके लिए नेचुरल एक स्वभाव है. कोई अगर उसका अगर स्वभाव, जैसे भी मुझे बोलो, फिर वो हिसाब से, वो कैलकुलेशन से वेस्टर्न लोग संन्यास ले ही नहीं पाते थे. फिर दे सो पैशनेट, तो कैसे लिया उन्हें संन्यास? गुरु कैसे बने?
मतलब बोलने का पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति वो एक नेचुरल चीज आपका आते रहता है, उसको अभी आपको सी व्हेन यू आर फॉलोइंग विद द करंट काफी इजी होता है, व्हेन यू आर फॉलोइंग अगेंस्ट द करंट वहां पे काफी स्ट्रगल होता है। मेरा एक स्वभाव है कि स्वभाव के अगेंस्ट जब मैं जा रहा हूँ, को जिस व्यक्ति के पास कैपेसिटी है वो करंट को, मतलब वो करंट से लड़ते हुए आगे बढ़ने का, वही आगे जा सकता है। और वही आगे चल के हो सकता है कि उसका स्वभाव थोड़ा बदल सकता है। करेंगे डिस्कस। टेक्स्ट क्या हो रहा है अभी? टेक्स्ट 32। हाँ, ये बस 31 का मैं थोड़ा परपोर्ट पढ़ता हूँ। ऑन द बॉडीली प्लेन स्वधर्म इज कॉल्ड वर्णाश्रम धर्म और मैंस स्टेपिंग स्टोन फॉर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। Human civilization begins from the stage of varnashram dharma or specific duties in terms of specific modes of nature of the body obtained. Discharging one specific duty in any field of action is accordance with the orders of higher authorities, serves to elevate one to the higher status of life. ये आपका आंसर है इधर, प्रॉपर आंसर दे आपके क्वेश्चन को। One can elevate by following varnashram dharma. ठीक है, टेक्स्ट 32। तो बेसिकली 31 से लेके तो 38 में, जिसमें मैंने बोला कि जो कॉमन थीम है वो है हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम प्रिस्क्राइब ड्यूटी। व्हेन वन फॉलोज वन प्रिस्क्राइब ड्यूटी वन विल बी हैप्पी एक्चुअली। ये इसमें इन जनरल डिस्कस किया गया है। ठीक है, 32 में क्या है? अभी मैंने बोला कि 31 32 था, यू शुड यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी फॉर धर्म युद्ध। तो 32 में बोल रहे हैं, ओ पार्थ, हैप्पी आर द क्षत्रियस टू whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors for heavenly planets। लोग आ गया तो लोग एक्सट्रेसी में जाते हैं। देखो मतलब सी हाउ वी कैन अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। जैसे जब जब कोई किसी का ब्लड ब्लड निकल रहा है किसी का, अगर ब्राह्मण किसी का ब्लड देखेगा तो उसको चक्कर आएगा। क्षत्रिय किसी का ब्लड देखेगा ना, उसको एक्सट्रेसी आएगा। हाँ, ऐसा होता है। तो उसको एक्सट्रेसी आता है ब्लड को देख के, उसे चक्कर नहीं आएगा, उसको ऐसा उल्टी ऐसा नहीं आएगा। हाँ। तो यहाँ पे कोट कर रहे हैं प्रभुपाद एक श्लोका जो पराशर स्मृति से है, गिवन बाय द पराशर मुनि, व्यासदेव के फादर। The Kshatriya's duty is to protect the citizens from all kinds of difficulties. And for that reason, he has to apply violence in suitable cases for law and order. Therefore, he has to conquer the soldiers, inimical kings, and thus, with religious principle, he should rule over the world. Prabhupada purport में लिख रहे पहले, the supreme as a supreme teacher of the world, Lord Krishna condemns the attitude of Arjun, who said, "I do not fight. I do not find any good in fighting. It will cause perpetual habitation in hell." Such statements by Arjuna were due to ignorance only. He wanted to become non-violent in discharge of a specific duty. For a Kshatriya to be on the battlefield and become non-violent is the philosophy of fools. Prabhupada लिख रहे हैं यहाँ पे। Considering all aspects, Arjuna had no reason to refrain from fighting. If he should conquer the enemies, he should enjoy the kingdom. And if he should die in the battle, he would be elevated to the heavenly planets, whose doors were wide open to him. Fighting would be for his benefit in either case. वो मरा हेवन जाएगा, जीता तो किंगडम मिलेगा, दोनों बेनिफिट है अल्टीमेटली। नाउ 33 विल टॉक अबाउट गिविंग अप वन स्वधर्म। वापस यहाँ पे एक वर्ड आया देखो, अथ। कुछ समय पहले आया था अथ, देयरफॉर। देखो जनरली स्टेटमेंट कभी भी देयरफॉर से चालू नहीं होता है। देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब क्या है? इसीलिए, मतलब इससे पहले का क्या था सारा? नहीं नहीं, इस देयरफॉर क्यों लिखा है उन्होंने? हाँ, इसीलिए if however you do not perform your religious duties of fighting, then you will certainly incur sin for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter. तो यहां से
सो टेक्स्ट 33, टेक्स्ट 34, टेक्स्ट 35, टेक्स्ट 36, इसमें तीन कारण दे रहे वो लोग। आता स्टिल लागेल की माहित नाही, पण तुला काही जॉब नाही मिळणार, जॉब नाही, लग्न नाही होणार, सगळ्या गोष्टी नाही होणार, यू विल बी लाईक ऑलरेडी इन मिझरी. दिस sin not always means that's your पाप. Sin also means you don't get anything. Like a student, to example दिला, if you are a student, you don't study properly, you'll not get good marks, no good marks, so then no good maybe placement, no good placement, no good job, no good job, then no if you go for marriage, then no one is going to give you girl. तो वो भी एक तरह से क्या हो गया, मतलब आजकल देखोगे ना आप, कितने सारे बॉयज को देखता हूँ मैं कि 28, 29, 30, 32, 34, 36, डोंट मैरी ओनली. शादी नहीं करते लोग, या फिर शादी नहीं करने से अच्छा है कि उनको भी मिलता ही नहीं है. तो इट्स इज इट, आई एम नॉट सेइंग कुछ, मतलब उसको सिन में हम नहीं डाल सकते, बट इज इट नॉट लाइक समथिंग लाइक नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट, मतलब एक तरह उसी तरह से है ना वो. अब इसको केस टू केस अलग अलग हो सकता है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मतलब मैं इतना बोलना चाहूंगा कि अभी क्या उसको एग्जाम्पल चिंगम की तरह तुम बड़ा तो खींच नहीं सकते सब जगह. एग्जाम्पल का एक पर्पस है ये वाले कि स्टूडेंट अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है तो फॉर श्योर उसको आगे, हो सकता है कि इन जनरल केस में नहीं होगा, पर अगर आप देखेंगे काफी सारे फेलियर्स लोग, जो आपको भी बोलेगा अरे प्रभु वो तो कौन था वो, एडिसन था, एडिसन. उसको कॉलेज स्कूल से निकाल दिया था बाहर कि इसको बुद्धि नहीं है कुछ, उसको ले जाओ घर पे, उसने बल्ब बना दिया. ऐसे ऐसे भी एग्जाम्पल है अपने पास. एडिसन ना, आइंस्टाइन नहीं, एडिसन. सो बेसिकली three losses which Krishna is telling. So text 33 will tell about sin and infamy. उसको पाप लगेगा और उसको उसका बेइज्जत होगा वो. सेक्स टेक्स्ट 34 टॉक्स अबाउट डिसऑनर, उसको डिसऑनर होगा. टेक्स्ट 35 टॉक्स अबाउट रिडिक्यूल, पीपल रिडिक्यूल हिम, उसको गाली देंगे, उसको उसकी टांग खींचेंगे. 34 अबाउट डिसऑनर, टेक्स्ट 35 अबाउट रिडिक्यूल, एंड टेक्स्ट 36 ऑल्सो अगेन अबाउट रिडिक्यूल. नाही ते आहे, ते या बुकनेस होतं की पीपल विल डिसऑनर यू इफ यू रन अवे. 34 to 36, बट स्पेसिफिकली काय काय म्हणतात ते मी ते सांगतोय. सो इन द 33 सीन अँड एन्फी पाहिली आपण. इफ however you do not perform your religious duty of fighting, then you will certainly incur sin of neglecting your duties, and thus you lose your reputation as a fighter. Because see, for अकीर्ति जो है ना, अकीर्ति, लॉस ऑफ रेपुटेशन, ये क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ा, मतलब उसको झेल नहीं पाता क्षत्रिय. इसलिए एवरी वर्णा, जैसे ब्राह्मण को आप अलग तरीके से पनिशमेंट देते हैं, पनिशमेंट के तरीके होते हैं अलग अलग, पर अब ब्राह्मणा यू जस्ट से, आप उसको वर्बली उसको बोलो, अरे आप इतने ऐसे, आपसे ऐसा अपेक्षा नहीं थी, तो उसको लगेगा अरे मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया, देन ही रिफॉर्म. ब्राह्मणा का गुण है. फॉर क्षत्रिय यू इंसल्ट, वो इंसल्ट करेंगे ना उससे जमेगा नहीं, उसको टॉलरेट नहीं होता है इंसल्ट किसने किया हुआ. फॉर वैश्य यू ऑफर अ कैपिटल पनिशमेंट. उसका अटैचमेंट कहाँ होता है, पैसा. क्षत्रिय का अटैचमेंट क्या होता है, मेरा नाम, फेम में अटैचमेंट होता है. ब्राह्मणा का अटैचमेंट क्या होता है, डिग्निटी, ऑनर. तो उसको वो पॉइंट पे पनिश किया जाता है. हाँ, शूद्र को, फॉर शूद्र इट इज सेड फिजिकल पनिशमेंट, इस तरह से. तो इसलिए क्षत्रिय होने के कारण उनको बोल रहे यार, तुमको इनफेमी क्यों बोल रहे हैं पे अर्जुन, हाँ भाई कृष्ण सिंह इनफेमी, वो तो कुछ और बोल सकते थे ना. इनफेमी इसलिए बोल रहे कि दैट्स व्हाट इज गोइंग टू ट्रिगर अर्जुन, इसीलिए. So Arjun was a famous fighter and he attained fame by fighting many great demigods, including Lord Shiva. After fighting and defeating Lord Shiva in the dress of a hunter, Arjuna pleased the Lord and received the reward of weapon called Pashupata Astra.
Everyone knew that he was a great warrior. Dronacharya gave him benedictions and awarded him special weapons by which he could kill even his teacher. So he was credited with so many military certificates from many authorities, including the adoptive father Indra, the heavenly king. But if he abandoned the battle, not only would he neglect his specific duty as a Kshatriya, but he will lose all his fame and good name and thus prepare his royal road to hell. In other words, he would go to hell. In other words, he would go to hell not by fighting, but by withdrawing from battle. इसलिए हल जाएंगे, है ना? अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम संभावित चाकीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते. People will always speak of an infamy, and for a respectable person, dishonor is worse than death. Krishna is again trying to trigger him. So the final judgment of the Lord was for Arjun to die in the battle and not to withdraw. कृष्ण तू मर जा लेकिन विड्रॉ मत कर. टेक्स्ट 35 वाचलं ना शेवटचं. सो द फायनल जजमेंट ऑफ द लॉर्ड. बाकी वाचायचंय का? वाचायचं. Both as a friend and philosopher to Arjun, Lord Krishna now gives his final judgment regarding Arjuna's refusal to fight. The Lord says, Arjun, if you leave the battlefield before the battle even begins, people will call you coward. And if you think that people may call you bad names, but that you will save your life by fleeing the battlefield, then my advice is that you should do better to die in the battle. For a respectable man like you, ill fame is worse than death. So you should not flee to for fear of your life. Better to die in the battle. That will save you from the ill fame of misusing my friendship and from losing your prestige in society. Text 35. The great generals, the great generals who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only. डर गया ये. And thus they will consider you insignificant. Lord Krishna continued to give his verdict to Arjun. Do not think that the great general like Duryodhan, Karna, and others contemporaries will think that you have left the battlefield out of compassion for your brothers and grandfather. They will think that you have left out of fear for your life, and thus their high estimation of your personality will go to hell. Text 36. Your enemies will describe you in many unkind words and scorn your ability. What could be more painful for you? Lord Krishna was astonished in the beginning of at Arjun's uncalled for plea for compassion, and he described his compassion as befitting for non-Aryans. Now, in so many words, he has proved his statements against Arjuna's so-called compassion. दोन श्लोक बाकी अजून सेक्शन संपायला. 37-38. हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्षये महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय. O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up with determination and fight. What is telling here? Win-win. You lose, you still win. You win, you still win. You are never a loser. That's what Krishna is ultimately saying. Now, ultimately, Krishna says, you fight for the sake of duty. Yeah. सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो तथो युद्धस्थ युजस्व नैवं पापम अवाप्यसि. Do thou fight for the sake of fighting without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat, and by doing so you shall never incur sin. Purport वाचूया पहिले, मैं एक्सप्लेन करतो. वाचा तूच वाच purport.
Lord Krishna now directly says that Arjuna should fight for the sake of fighting because he desires the battle. There is no consideration of happiness or distress, profit or gain, victory or defeat in the activities of Krishna consciousness. That everything should be performed for the sake of Krishna in transcendental consciousness. So there is no reaction to material activities. He who acts for his own sense gratification, either in goodness or in passion, is subject to the reaction, good or bad. But he who has completely surrendered himself in the activities of Krishna consciousness is no longer obliged to anyone, nor is he a debtor to anyone, and when he is in the ordinary course of activities. It is said, anyone who has completely surrendered unto Krishna, Mukunda, given up all other duties, is no longer a debtor, nor is he obliged to anyone, nor the demigods, nor the sages, nor the people in general, or kingsmen, nor humanity, nor forefathers. Bhagavatam 11.5.41. That is the indirect hint given by Krishna to Arjuna in this verse, and the matter will be more clearly explained in the following verses. हम्म. हाँ हाँ, तो श्लोक है ना. देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम ना किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परि 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 परिहृत्य करतम. बेसिकली 11th कैंटो में श्लोका है. एनीवन हु हैज कंप्लीटली सरेंडर्ड टू कृष्णा मुकुंदा गिविंग अप ऑल अदर ड्यूटीज. म्हणजे कोणाकोणाला? देवर्षी, देव, ऋषी, भूत, आप्त, नृणाम, राजा, पितृणाम, पित्र, ना किंकरो नायम रणीच राजन. हे राजन, कोण व्यक्ती या कोणालाच या कोण, नो वन हु कॅन बिकम फ्री ऑफ दिस ऋण. कोण फ्री होऊ शकतं? सर्वात्मना, सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम. ज्याचं शरण घेतलं पाहिजे अशा व्यक्ती, ज्या व्यक्ती शरण घेतो कुठल्या लेवलला? सर्व आत्म मन. विथ ऑल मीन्स ही टेक सरेंडर, शेल्टर. गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम. such a person becomes completely free. अशा व्यक्तीला कुठलेही ड्युटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी करायची आवश्यकता नाही. एक श्लोक येतो, आय थिंक सो वन ऑफ द गोस्वामी रिटन दॅट श्लोक. ही सेज दॅट संध्या वंदन एंड लाइक दैट ही टेल्स ऑल द डिफरेंट एक्टिविटीज. ही सेज आई डोंट डू एनीथिंग. संध्या वंदन नहीं करता हूं मैं, है ना. फिर मैं मतलब 3 बार संध्या करना, 3 बार गायत्री करना, वहां से लेके तो पितरों को कुछ वो सब करना, वो सब नहीं नहीं करता मैं. क्यों क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे पास, मैं इतना बिजी हूँ भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, वो टाइम ही नहीं मिला सब करने के लिए. आई मीनिंग टू से फॉर अ डिवोटी हु इज कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसको जरूरत नहीं पड़ता सब करने का. पितृ हो, फोर फादर्स को हो, या फिर जो भी है, श्राद्ध हो, वो सब करने की जरूरत नहीं है. फुल फ्लैश प्योर ड्यूटी के लिए, हमारे लिए नहीं. वी आर इन द प्रोसेस. व्हेन वी गेट देयर देन हमारे लिए अप्लाई होगा. तो मैं जस्ट 2 मिनट में अगले आपको बस अगला एक मेरे को जो इम्पोर्टेंट आपको कन्वे करना था, अगले सेशन में शायद आपका वहां से कंटिन्यू होगा. जस्ट वांटेड टू से दैट पार्ट. हाउ कृष्णा इज मोटिवेटिंग अर्जुन टू कन्विंस टू फाइट. पर उससे पहले एक जस्ट शॉर्ट बोल देता हूं आपको कि ना अगला सेक्शन आप पढ़ेंगे बुद्धि योगा का. टेक्स्ट 39 से लेके तो 53 तक, है ना. उसमें क्या होगा? तो कृष्ण बोलेंगे भाई, हैव फिक्स इंटेलिजेंस एंड डोंट गेट डेविएटेड बाय वेदास. उसका उसमें डिस्कशन होगा 39, 30 और 40 में. वेदा से आप, वेदों की वाणी ये बहुत क्या बोलते हैं, एकदम ऐसा अट्रैक्टिव वाणी है, जिसमें डेविएटिव, उसे डेविएट मत होना, वो बोलेंगे. तो 47 48 में क्या होगा? सॉरी, 39 से 46 में सब चर्चा होगा. 39 से 46 में क्या होगा? हैव फिक्स इंटेलिजेंस एंड डोंट गेट डेविएटेड बाय वेदास. टेक्स्ट 47 48 में क्या होगा? विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट्स डू योर ड्यूटी.
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कदाचन, सब उसमें आएगा. कीप अबोमिनेबल एक्टिविटीज असाइड, दिस विल बी इन 49. एंड देन 50 to 53 में आएगा बी अ स्थितप्रज्ञ बाय बुद्धि योग. एंड टॉक अबाउट स्थितप्रज्ञ से का भाषा, और सब उसमें आगे आएगा. तो बेसिकली जो मैं आखिरी पॉइंट बोलने वाला था इसमें, so Krishna motivating strategy to convince Arjun to fight. पहला स्ट्रेटेजी कृष्ण का 2.10 से 2.11 में, उसमें क्या हो रहा है? पहला स्ट्रेटेजी में कृष्णा डिसाइड टू स्पीक एंड मोटिवेट्स अर्जुन टू फाइट. ये सब कब का है? जब कृष्ण अर्जुन पूरी तरह से बोल दिया, हरे कृष्णा मैं आपको, आप मेरे गुरु बनो, और सब होता है. कृष्ण बोलना चालू करते हैं. फिर टेक्स्ट 11 से लेके तो 30 तक, 11 से लेके 30 तक कृष्णा क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं? ज्ञान. वेरी गुड. तो प्रिंसिपल इन्वॉल्व क्या है? नॉलेज ऑफ इमोर्टेलिटी ऑफ सोल. उससे क्या फायदा होता है? दिस डिस्पेल्स अर्जुनस मटेरियल कंपैशन एंड लैमेंटेशन बेस्ड ऑन द बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ. ये चीज कृष्ण अचीव करते हैं ये स्टेज में. अगला स्टेज क्या था? 31 से 38 जो हमने आज पढ़ा, क्या था स्टेज? कर्मकांड. हाँ, कर्मकांड था. So इसमें हाउ टू गेन हायर एंजॉयमेंट एंड अवॉइड मिजरी बाय परफॉर्मिंग प्रिस्क्राइब ड्यूटी ऑफ फाइटिंग. ये स्ट्रेटजी यूज किया कृष्ण ने. दिस इज अ मंडेन प्रिंसिपल एंड नॉट एंड हैज नो स्पिरिचुअल वैल्यू. दिस इज अ मंडेन प्रिंसिपल 31 से 38 में जो था कि अरे भाई तुम क्या करो, फाइट करो, बस स्वर्ग मिला लो, स्वर्ग तो मिलेगा. ये प्रिंसिपल इज अ मंडेन प्रिंसिपल, इट्स नॉट अ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल. कृष्णा मतलब स्ट्रेटेजी यूज करे अलग अलग, अल्टीमेटली अर्जुन को एक्टिवेट करने के लिए. फिर 39 से 53 में जो अगला सेक्शन अगली अगली बार पढ़ेंगे आप, कृष्णा स्ट्रेटेजी यूज क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे? निष्काम कर्म योग और बुद्धि योग, वो सिनोनिम्स है. निष्काम कर्म योग और बुद्धि योग. उसमें कृष्णा बोलते भाई डिटैच वर्क करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो सब इसमें आएगा. सो बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ सोल and the relationship with Krishna, detached from the calculation of enjoyment and misery, as was suggested in the section 3, that is Karma Kand. अरे भाई, भाई मैं अगर क्षत्रिय से काम करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, कैलकुलेशन है ना. इससे डिटैच हो जाओ अभी बोलते कृष्णा, वो कैलकुलेट मत करते बैठो, है ना. तो आप क्या करो आगे? अभी द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द सोल. तो स्थित प्रज्ञ प्रिंसिपल अप्लाई करो और अल्टीमेटली क्या करो? फाइट करो. तो टेक्स्ट 38 के 38 के यस परपोर्ट में प्रोपात क्या करते हैं? उसको एक स्टेप ऊपर लेके जाते हैं. और क्यों फाइट करो? फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, जो हाईएस्ट स्टेज है. यस 38 में प्रोपात इक्वेट्स बुद्धि योगा विथ, या फिर निष्काम कर्म योगा विद विद भक्ति योगा. डज इट मेक सेंस? 38 से लास्ट पॉइंट का पहला पहली पहली लेवल क्या होती? फर्स्ट लेवल क्या है? 10 और 11 में कृष्ण बोलते चलो मैं इसको ना अभी बोलता हूँ, उसके बारे में मोटिवेशन टॉक देना चाहिए मुझे इसको, इनको अभी. वो स्टार्ट करते हैं. फिर बाद में 11 to 30 में जब कृष्ण आते हैं, कृष्ण स्ट्रेटेजी क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे? फिलोसफी ऑफ ज्ञान. कि बोलते हुए सोल इमोर्टल है, एंड में बोलते ठीक है फिलोसफी, बुद्धिस्ट फिलोसफी बोल देते हैं, है ना. फिर कर्मकांड बोल देते हैं, सब कुछ बोल देते हैं. फिर 31 to 38 में क्या होता है? कर्मयोग, फिर कर्मकांड के बारे में खास करके कृष्ण बोलते हैं. बोले भाई ये हाउ टू गेन हायर इंजॉयमेंट एंड अवॉइड मिजरी. इन शॉर्ट, स्वधर्म करो, है ना. स्वधर्म करोगे, मरोगे, स्वर्ग जाओगे, जियोगे, किंगडम जीतोगे. इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट करो, कोई इंजॉयमेंट मिलेगा. पर फाइट करो, फाइट करना छोड़ो मत. हालांकि ये पूरा एक मंडेन प्रिंसिपल है, मटेरियल प्रिंसिपल है, पर फिर भी जिसका स्पिरिचुअल कुछ नहीं है.
और आखिरी में 39 से 53 में जो आप आगे अगली बार पढ़ोगे, स्ट्रेटेजी क्या है उसके इसमें, निष्काम कर्म योग या बुद्धि योग, कर्म कांड, यस, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। 39 टू 53 में क्या स्ट्रेटेजी था, निष्काम कर्म योग, बुद्धि योग। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं उनको प्रिंसिपल, डिटैच वर्क। मैंने एग्जांपल दिया कर्मण्यवाधिकारस्ते, वो सब कृष्ण बोलेंगे इसमें। डिटर्मिनेशन के ऊपर बात करेंगे, व्यवसायत्मिका बुद्धि एको ही कुरु नंदना, ऑल दिस थिंग विल टॉक इन दिस। और फिर दिस प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द सोल। और फिर इसमें फिफ्थ स्टेज एक आता है जो प्रभुपाद मेंशन करते हैं, श्रील प्रभुपाद टेक्स इट टू इवन हायर लेवल ऑफ मोटिवेशन। प्रभुपाद बोलते हैं दैट इज प्लेजर ऑफ कृष्णा। व्हाई अर्जुन शुड फ्लाई फाइट, प्लेजर ऑफ कृष्णा। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन ने युद्ध करना चाहिए। और इसमें प्रभुपाद इज इक्वेटिंग नाउ निष्काम कर्म योग ऑन द लेवल ऑफ भक्ति योग। दोनों को सेम ही बोल, निष्काम कर्म योग आप लोगों ने पढ़ा नहीं है अब तक, अगली बार पढ़ेंगे आप। हाँ, हेच चालू आहे, योगा चालू नाही सगळं। कुछ क्वेश्चन था उनका, हरी बोल। नहीं, उसमें क्या है, भले स्टूडेंट क्वालिफाइड नहीं है, है ना, इवन दो दे आर नॉट क्वालिफाइड बट दे आर नॉट गेनिंग रॉन्ग नॉलेज। इवन दे आर नॉट क्वालिफाइड, वो समझ नहीं पा रहे कुछ, है ना, याद उनको याद नहीं रह रहा कुछ भी चीज, क्या बोल रहे टीचर समझ नहीं, बाउंसर जा रहा है सारा। पर एटलीस्ट दैट नॉलेज, वेर द नॉलेज इज प्योर नॉलेज, वो प्योर नॉलेज उनके हृदय का शुद्धि तो करेगा कम से कम। बट रॉन्ग नॉलेज फ्रॉम दिस साइड विल नॉट ओनली contaminate the heart but will completely take him down। ठीक है, एनीथिंग एल्स, विल एंड फॉर द डे। थैंक यू। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।